So today we will look at chapter 3 of Romans. और आज हम रोमियो के अध्याय 3 की ओर देखेंगे। We have very detailed, we have finished chapter 1 and 2. और हमने गहराई से अध्ययन करके रोमियो अध्याय 1 और 2 को समाप्त किया है। I will read one verse from Romans 3, which is 3:9 to start with. और मैं रोमियो अध्याय 3 से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो वह है वचन 9, और मैं उस वचन से इसकी शुरुआत करूंगा। It says that, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। So this is what we have been seeing in chapter 1 and 2. The writer, the Paul was confirming that everybody is under sin, Gentiles and the Jews. और यही हमने रोमियो का अध्याय 1 और 2 में देखा, जहां पर लेखक जो प्रेरित पौलुस है वो लिखते हुए बताते हैं कि यहूदी हो चाहे यूनानी या अन्य जाति का व्यक्ति हो, वो सब पाप के वश में है। Yeah, in chapter 1 we saw that God displayed his attributes very clearly to the whole earth, but many people did not believe in God. Because of that, their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. और हमने रोमियो के अध्याय 1 में यही अध्ययन किया कि परमेश्वर अपनी हुजूरी और अपना जो प्रभुत्व है वह सारे जगत के लोगों पर प्रकट करते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं चाहा और परमेश्वर ने उनके मन पर उन्हें छोड़ दिया। In chapter 2 we saw how Jews, the religious people, the Jews were condemned by their own law. और उसके रोमियो के दूसरे अध्याय में हमने यह अध्ययन किया कि कैसे यहूदी जिनके पास व्यवस्था थी, कैसे वो व्यवस्था के द्वारा दोषी ठहराए गए। They were having the law, they taught laws to many people, but they were actually becoming blind guides because they did not practice what they taught. और हमने यह भी देखा कि कैसे यहूदी जिनके पास व्यवस्था है और वह यह दावा करते हैं कि वह अंधों के अगुवे हैं और उनका मार्ग दिखाने वाले हैं, लेकिन वो उन बातों को नहीं करते जो वो कहते हैं। Further, we saw that circumcision, which is the sign for the Jews that they are a Jew, is of no use if there is no change in their heart. और आगे हमने खतने के विषय में भी अध्ययन किया और जाना कि एक यहूदी यदि उसके हृदय में कोई बदलाव नहीं है तो वो जो खतने का चिन्ह उसके शरीर में है वह किसी लाभ का नहीं। And ultimately we saw that it says that Jew is not a Jew who is outwardly. A Jew is a Jew who is inwardly. और यह भी हमने वचन में देखा कि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, परंतु यहूदी वह है जो मन में है। So then we come to when chapter 3, it says, the first verse says that what advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? और रोमियो अध्याय 3 वचन 1 में हम देखते हैं, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। So this can be, Jews, today's Jews, we are not Jews, but we are Christians. Today we can ask this question to the Christians or the CFC church members. और आज यहाँ पर जो वचन कहता है यहूदी, तो हम यहाँ पर यहूदी की जगह आज के समय में अपने आप को हम एक मसीही व्यक्ति को लेंगे, या हम CFC कलीसिया के जो मसीही हैं हम अपने आप को लेंगे। Is there any benefit if all are under sin, all are under the power of sin? Is there any benefit in becoming a Christian or born in a Christian family or in a CFC church? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यदि आपका जीवन, भले ही आपने एक मसीह परिवार में जन्म लिया है या आप एक मसीह है, फिर भी क्या पाप आपके जीवन, आप पाप के वश में हैं? He speaks to the Jews here, second words, much sin every way. First of all, the Jews had been entrusted the very word of God. और उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। Because that Jews were having a very good environment to lead a godly life. They were given the word of God. They lived in a country which exalted the name of God, which moved away from idol worship. They had a very good environment to live a godly life. और हम यहूदियों के विषय में देखते हैं कि यहूदियों को जीने के लिए ऐसा वातावरण मिला कि जहां पर वो परमेश्वर का भय मान सके। उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाएं थी जिनका पालन उनको करना था, और उन्हें ऐसी आज्ञा मिली थी कि वो मूर्ति पूजा को छोड़कर हटकर परमेश्वर की ओर आए, और ऐसा अच्छा वातावरण जहां वो परमेश्वर को पाए।
Today we can look into our life. We also have a good environment. We were born in good families. We have a good environment to lead a godly life. और आज हम अपने आप के जन्म को देखते हैं तो हम भी ऐसे परिवार में और ऐसे वातावरण में जन्मे और रखे गए हैं जहां पर हमें एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए वह सब कुछ है। But if you don't make use of it and lead a godly life, the judgment on us will be much severe than the other people. That's what we will see further. लेकिन आगे हम देखते हैं कि यदि इन सारे स्रोतों के बावजूद यदि हम अपने जीवन में उस बात को यत्न से नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, तो हम औरों के तुलना में अधिक दंड के भागी होंगे। Third verse says that what if some are unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? और उसका तीसरा वचन, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? This is the nature of God which we see here. There are many people who are unfaithful around us. That does not nullify God's faithfulness. Even if people are unfaithful, God will always remain faithful. और यही हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि यदि हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं वह हमसे विश्वासघात कर ले और हमें धोखा भी दे दे, लेकिन परमेश्वर सच्चा ठहरता है, वह विश्वासघात कभी नहीं करता, वह विश्वास योग्य है। Faithfulness is God's nature. Even if not even a single person is faithful on this earth, God will remain faithful and His standard will never be lowered. और यदि इस संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचता कि जो विश्वास योग्य बना रहे, तो भी परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं करता। यह परमेश्वर का स्वभाव है कि वह विश्वास योग्य बना रहता है। That's what we see in verse 4, and further it says that let every man is a liar, but God is still truthful and faithful. और उसके चौथे वचन में हम यही पढ़ते, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। So further we will see a quotation from Psalm 51:4 which says that so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. और हम यहाँ पर भजन संहिता 51 के वचन 4 से यह वचन जो यहाँ पर दर्शाया गया हम पढ़ते हैं, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। Next 3-4 verses actually Paul is addressing a small misunderstanding which the Jews in Rome had with Paul's teaching. और आगे के कुछ वचनों में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की जो शिक्षाएं थी उसके विषय में यहूदी और रोमियो के बीच में जो गलतफहमी और गलत अर्थ लगाए थे। To understand that, we can read verse 8, which says that why not say, as some slanderously claim that we say, let us do evil, that good may result. और यही हम उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। Some people say that this is what Paul said, but Paul did not actually say that. और कुछ लोग ऐसे कहते थे कि पौलुस ने ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन वास्तव में पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। But what nearest to that, what Paul would have said is in Romans 5:20, we can say the law was brought in so that transgress might increase, but where sin is increased, grace increased all the more. लेकिन प्रेरित पौलुस ने रोमियो अध्याय 5 के वचन 20 में ऐसे कहा, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। That's what these people are telling, when the sin increased. But Paul did not say that. When the law was brought in, sin increased, but it's not because the sin of the people increased. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि व्यवस्था जब बीच में आ गई तो अपराध बहुत होने लगा और अनुग्रह भी बढ़ता गया, लेकिन पौलुस का यह नहीं कहना था कि अपराध बढ़ता जाए, पाप बढ़ता जाए। So law actually helped to measure the sin. और व्यवस्था जो है वह इसलिए काम में लाई गई कि पाप कितना है, उसकी बहुतायत कितनी है, उसकी गणना की जा सके। Sin was there in the world. When law came, you know how much sin is there. Suppose sin is there in my life. When I look at my law, I know how much deeply in sin I am. और हमारे इस संसार में पाप पहले से ही उपस्थित था, लेकिन जब व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि पाप कहाँ तक और कितनी गहराई में फैला है। यदि मैं अपने जीवन में देखूं कि मेरे जीवन में कितना पाप है, व्यवस्था से मैं अपने जीवन को जांचूं, तो पता चलता है कि गहराई में मेरे जीवन में कितना पाप है। When that happens, God gives more grace. और जब वह होता है तब परमेश्वर और ज्यादा अनुग्रह करता है। It is not talking about you sin more so that you will have more grace. यहाँ पर वचन यह नहीं बात कर रहा कि आप ज्यादा पाप करें तो आप पर ज्यादा अनुग्रह होगा। Another way of explaining is, in today's environment with the COVID-19, when the testing was not there, we don't know how many people were sick. और आज के जैसे कि वातावरण समय में जहाँ पर कोविड बीमारी फैली, हम देखते हैं कि जब उसकी जांच नहीं की जाती थी
उसका टेस्ट नहीं होता तो पता नहीं चलता था कि कितने लोगों को यह बीमारी हुई है। When suddenly the testing was introduced, we find that the COVID numbers are increasing 4 lakh, 5 lakh, 2 lakh, 3 lakh, and even 4 lakh. और लेकिन जब उसकी जांच होने लगी लोगों के बीच में, तब हमें पता चला कि यह बीमारी लाखों की संख्या में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करके बढ़ती जा रही है। The testing did not make the people sick, but testing found out how many people were actually sick. That is exactly what Lord did in our life. और वह जो जांच थी, वह जांच के कारण लोग बीमार नहीं पड़ते थे कोरोना से, परंतु यह पता चल रहा था कि कितने लोगों को यह बीमारी हुई है। यही With काम this, व्यवस्था ने किया कि जांच करे कि हमारे जीवन में कितना पाप है। with this background, we'll read fifth verse. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? God is unjust in bringing his wrath on us? और हम उस रोमियो 3:5 में देखते हैं, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। If our unrighteousness brings out God's righteousness, that's what they say. Then sixth verse says, certainly not. If that were so, how can God judge the world? और यहाँ पर जो 5वां वचन कहता है कि हमारी जो अधार्मिकता है, अधर्म है, वह परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करती है। 6वां वचन कहता है कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। Our unrighteousness will not bring out God's righteousness more, because God's righteousness is always there, whether we are righteous or unrighteous. और ऐसा नहीं है कि हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को और ज्यादा प्रकट करेगी, क्योंकि हम धर्मी हो या अधर्मी हो यह मायने नहीं रखता। परमेश्वर धर्मी बना रहता है, धर्मी ठहरता है। Seventh verse says the same thing again. If falsehood enhances God's truthfulness and so increase his glory, why am I still condemned as sinner? और 7वां वचन, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। These people are telling, if my falsehood is increasing God's faithfulness, then why I am condemned? But that is a false statement. This is the kind of allegations which some of the Jews were placing on Paul. और यहाँ पर यह वचन हम जो पढ़ते, जो पूरी तरह से झूठा ही कथन है और झूठा दावा है, जो कहता है कि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई और उसकी महिमा के लिए प्रकट होती है। और यही दावा रोमी और यहूदी प्रेरित पौलुस पर आरोप लगा रहे थे। So the 9th verse again we will read. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made charge that Jews and Gentiles alike all have come under the power of sin. मतलब 9th वर्स 9th verse, yeah. और उसके 9वें वचन में देखते हैं, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। So this shows that everybody has come under the power of sin. और यहाँ पर वचन से हमें यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति पाप के वश में है, पाप के जो सामर्थ्य उसके अधीनता में है। So when you come under the power of sin, you have no way. You will be forced to sin. There is no escape for you. और जब आप एक बार पाप के वश में हो जाते हैं, पाप के अधीन हो जाते हैं, तब आपके लिए कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं बचता। आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, जोर जबरदस्ती होती है कि आप पाप करें। That is why this gospel is very important. Only gospel can save such people who are under the power of sin. इसलिए हमारे लिए यह सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यही एकमात्र सुसमाचार है जो पाप के जो वश में उन्हें बचा सकता है। The Jews had a standard of the law, but the standard which Jesus brings forth is much higher than the standard of the law. और जो व्यवस्था का स्तर था यहूदियों के जीवन में जिसे जीना था, वह उससे कई गुना ज्यादा ऊंचा स्तर यीशु मसीह लेकर आए। That standard we cannot live on our strength. It can be lived only by the strength of Jesus Christ. That is the gospel. और सुसमाचार यही है कि यह जो सर्वोत्तम ऊंचे स्तर का जो जीवन है जो यीशु मसीह लाया, उससे हम अपनी शक्ति पर नहीं जी सकते हैं, परंतु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ही हम उस जीवन को जी सकते हैं। We may have a natural question now that there are a lot of good people in various religions. Will they not go to heaven? और अब हमारे पास यह एक आमतौर पर प्रश्न उठता है कि बहुत से अच्छे लोग हैं कई सारे अन्य धर्मों में भी, तो क्या वो सब स्वर्ग नहीं जाएंगे? I have heard that people tell there are very good people, much better than the Christians we know. But will God not consider them
are saved? Will they not go to heaven when he comes? लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे मसीह भी होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कई ऐसे अन्य जाति में, अन्य धर्मों में भी अच्छे लोग हैं जो मसीहियों से भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या जब मसीह आएंगे तो वह भी उठा स्वर्ग नहीं लेकर स्वर्ग नहीं जाएंगे? But Bible says that everyone is a sinner. लेकिन बाइबल कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक ने पाप किया है। We can see a similar example in Bible. There was a man called Cornelius. और हम इसी के संबंध में एक समान उदाहरण देखते हैं, कुरनेलियुस का नाम का जो व्यक्ति है उसके जीवन में। He was one of the most good or righteous people, come to any standard. You might have seen very good and righteous people around us. This man is much better than any of them. और हम कुरनेलियुस के जीवन के विषय में पढ़ते हैं कि वह एक मसीह नहीं था, परंतु वह अच्छी तरह एक धर्मी व्यक्ति था और स्वभाव में बहुत ही भला और अच्छा व्यक्ति था, जैसे हम अपने आसपास में कई अच्छे लोगों को देखते हैं। You can read that in Acts 10:22. Acts 10:22 says, Then men replied, We have come from Cornelius, the centurion. He is a righteous and God-fearing man, who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. और हम यही प्रेरितों के काम 10 के 22वें वचन में हम देखते हैं, उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। Cornelius was a Gentile, but he was a God-fearing man. He was also called as a righteous man. और कुरनेलियुस जो एक सूबेदार था, वह एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन वह धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। But he was told by the angels to call Peter and listen to the gospel. लेकिन एक स्वर्गदूत ने उससे यह निर्देश दिया और कहा कि तू पतरस को बुला और उसके द्वारा तू सुसमाचार को सुन। So the fourth verse further says what kind of man he is. The fourth verse says, an angel answered, Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. और उसके विषय में हम उसी अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। So this is what a great man is. He was giving prayers to God. He was giving gifts to the poor. We cannot see a better man than that around us, even in the Christendom. और यहाँ पर हम इस व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि इसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और यह गरीबों को बहुत दान भी दिया करता था। और हम ऐसे अच्छे व्यक्ति को हम आज मसीह जगत में भी हमारे आसपास नहीं पाते हैं, जितना अच्छा यह व्यक्ति है। Second verse says that he and all his family were devout, God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. और उसके दूसरे वचन में भी हम पढ़ते हैं, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बार-बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। Such an amazing man, but he has not heard the gospel of Jesus Christ. कितना अच्छे स्वभाव का यह व्यक्ति है, लेकिन उसने यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना। And God supernaturally sent an angel for him to hear the gospel. लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया और एक स्वर्गदूत को भेजा कि वह सुसमाचार सुने। And he heard the gospel, and further we can say that he is saved and he was baptized. और आगे के वचनों में हम जब पढ़ते हैं तब हम वहां पाते हैं कि उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, वह उसका उद्धार हुआ, उसने उद्धार पाया और उसने बपतिस्मा भी लिया। So this will tell us how important is that we should understand the gospel which is mentioned in the Romans. तो हमारे लिए यह सुसमाचार जिसका वर्णन रोमियो की पुस्तक में किया गया है, हमारे लिए जानना कितना महत्वपूर्ण है। Because everybody is under sin, and as we saw in Romans 1, that God is going to judge each one of us according to this gospel. Brother, can you repeat? And as we heard that everybody is under sin, and God is going to judge us according to this gospel. और हमने जैसे कि वचन में देखा कि सब हर एक व्यक्ति पापी है और पाप के वश में है, और जैसे कि रोमियो के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर एक दिन हर एक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार न्याय करेगा, उसे बदला देगा। When you read further, from 10th verse onwards, we will see the graphic representation of the nature of human beings. और आगे जब आप रोमियो अध्याय 3 के वचन 10 से आगे की ओर पढ़ते हैं, तब हम वहां पर एक चित्रण पाते हैं एक व्यक्ति के स्वभाव का। This is an X-ray or a CT scan
which is done to a human being to see that how sinful we are. और यह जो वचन आगे की ओर जो हम पढ़ते हैं, यह एक सीटी स्कैन और एक्सरे के समान है कि जैसे एक मानव शरीर का जो मन है उसका एक्सरे निकाला गया, और यह वचन उस बात उसको दर्शाता है। 10th verse, there is no one righteous, not even one. 10वां वचन जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। This is the doctrine of universal sinfulness, and God is not pleased by anyone other than Jesus. Jesus Christ, no human being is, God is not pleased by any human being. He is pleased only by the life of Jesus Christ. और यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं कि यह एक सिद्धांत यहाँ पर ठहरता है कि इस जगत में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ हो, लेकिन परमेश्वर किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रसन्न हुआ और वही धर्मी ठहरता है, वह केवल यीशु मसीह है। The degree of sin may differ, but all are under sin. और जो पाप की जो गंभीरता है और पाप की जो बहुतायत है, वह हर एक व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग है, लेकिन हर एक व्यक्ति पापी है। Yeah, that is why Jesus had to come. और यही कारण है कि यीशु मसीह को आना था। The next 11th verse says that no one understands. There is no one who understands. There is no one who seeks after God. 11वां वचन, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। So to understand, no one understands that when Jesus Christ came, he was the person through whom we could actually understand God. और परमेश्वर को कोई नहीं समझ पाता था और कोई परमेश्वर को नहीं खोजता था, लेकिन यीशु मसीह उन्होंने दर्शाया और यीशु मसीह के द्वारा लोगों ने परमेश्वर को जाना। Understanding of God comes only when you look into Jesus Christ and understand him. That's only way we can understand who God is. और परमेश्वर के विषय में आपको समझ तभी आएगी जब आप यीशु मसीह के जीवन को गहराई से और बारीकी से देखेंगे और जानेंगे। Further it says there is no one who seek after God, not even one. और आगे कहता है कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। See, this will be, you will find a lot of people who are seeking after God. People who go for pilgrimage in other religions. You will find people, traveling so much, distance to in search for God. और हम आज जगत में पाते कि कई सारे लोग परमेश्वर की खोज में लगे हुए, वो अपने धर्म को भी बदल देते हैं और दूसरे धर्म में जाते हैं कि वो परमेश्वर को खोजे और पाए, और कई सारे लोग बहुत लंबी दूरी की यात्रा भी तय करते हैं। But Bible says actually there is no one seeking for God. लेकिन बाइबल कहते हैं कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। For example, if a thief is looking for a policeman, is searching for a policeman. कि उदाहरण के लिए जैसे एक चोर है, वह एक पुलिस वाले को खोज रहा है। He is not searching for the policeman to shake hand with him or just say hi to him or talk to him. और वह चोर जो है वो पुलिस वाले को इसलिए नहीं खोज रहा है कि उससे हाय हेलो कर सके और हाथ मिला सके। He is searching for the policeman so that he can get out, run away from some other road and he can avoid him. वह चोर इसलिए पुलिस वाले को खोज रहा है ताकि वह उसे पा सके और जान सके वो कहाँ है और वह अपना मार्ग बदल कर उससे छुप सके। That is how we all search for God, because we are all sinners. We search for God to avoid some disaster which will come upon us. और यही कारण है कि हम भी इसी रीति से, इसी उद्देश्य से परमेश्वर को खोजते हैं कि कहीं पाप का जो परिणाम है, वह जो भयानक नाश है, वह हम पर ना आ पड़े। There are people who go to temples and give something so that God will not become angry with them, or they just escape from God. और ऐसे कई सारे लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं और वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसी कारण से और उद्देश्य से कि परमेश्वर उनसे, भगवान जो है उनसे नाराज ना हो, उन पर गुस्सा ना हो। So another aspect of that is, we all search for God who is like us, who will satisfy our own desires. और हम ऐसे परमेश्वर की खोज में हैं जो हमारे समान हो बिल्कुल, और जिसे हम पसंद करते हो। For example, if you want your children are in the school and you want them to score good marks, you are looking for a God who will be with you to give them good marks. और जैसे कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, तो आप ऐसे भगवान की, परमेश्वर की खोज करेंगे जो आपके बच्चों को अच्छा नंबर देता हो। Some days, some people will tell others, some people, when they have a fight with someone, they say that my God will show you, my God will take care of you. They will try to take revenge on someone using the name of God. और जैसे दो व्यक्तियों के बीच में जब झड़प होती है और कहासुनी होकर झगड़ा हो जाता है, तब वो एक दूसरे से कहते हैं कि
मेरा परमेश्वर तुझे दिखाएगा, और वो परमेश्वर का, भगवान का नाम लेकर दावा करते हैं बदला लेने का। This is how is the most human beings search for God. They search for a divine power who is like them, who will fulfill their own wishes. और इसी रीति से लोग परमेश्वर की खोज में है कि वह उनकी इच्छा और मनोकामनाओं को पूरी कर सके। When we actually meet Jesus, when we meet the real God, it will be like Peter meeting Jesus. और लेकिन जब हम वास्तव में एक सच्चे और जीवित परमेश्वर को जब हम मिलेंगे और जब पाएंगे, जैसे हम जब यीशु मसीह को जब पाएंगे, तब हमारा मिलना ऐसा ही होगा जैसे पतरस ने यीशु को पाया। Peter, jumped out of the boat and swam away, telling that, Lord, depart from me, I am a sinful man. कि जैसे पतरस विनती कर रहा था उस नाव से उतर जाने के लिए, वो छलांग लगाना चाहता था कि प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। That's what, when we actually meet Jesus, when you look at him, you see his righteousness. Then we see that how depraved we are, what a bigger. Brother, can you repeat? When we look at Jesus, when we look at his righteousness, we will know what a bigger sinner we are, and we will see how deeper we are in sin. लेकिन जब हम यीशु मसीह की ओर वास्तव में देखते हैं, तब हम पाएंगे कि यीशु मसीह कितने धर्मी और सच्चे हैं, और उनके द्वारा हम अपने आप में देखते हैं कि हम कितने पापी और दुष्ट व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं, कि परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। You can see that Peter, when he had a big catch of fish because he met Jesus, but he left the fish and everything. We don't know what happened to the fishes, but he became a changed man. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कहने के द्वारा पतरस ने बहुत सारी और बड़ी मछलियों को पकड़ लिया। हम नहीं जानते कि उन मछलियों का क्या हुआ, लेकिन जब वो यीशु से मिलते हैं तो कहते हैं कि दूर हो जाओ मुझसे प्रभु। So the 12th verse says that all have turned away; they have together become worthless. There is no one good. और आगे 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। There is no one good. कोई भी भलाई करने वाला नहीं, कोई अच्छा नहीं। Yeah, then 13th verse says that their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. और उसके 13वें वचन में, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। We can see, look into our life also, we can see, when we open mouth, sometimes when we open our mouth, death comes out, not life-giving words, but the words that produce death comes out of our mouth. और कई बार हम हमारे जीवन में पाते हैं कि जब कभी हम मुंह खोलते हैं और हमारे मुख से शब्द बाहर आते हैं, वो मृत्यु लेकर आते हैं, वो जीवन नहीं लाते। और कई बार हमारे मुख से आने वाले शब्द में जीवन नहीं, परंतु मृत्यु होती है। Because we may think that we are not like this. We are not like this because the work of Christ is happening in our lives. और कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, कारण यह भी हो सकता है कि मसीह का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। If it was not for the work of Christ, we would have been asked words such this. यदि मसीह का कार्य हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, तो हम इससे भी बदतर और बुरे बन जाएंगे। There are people who are not believers, but they are very good, nice people, gentlemen. और ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो विश्वासी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही स्वभाव में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। It's all because of they consciously are putting all this bad nature into control. और यही कारण यह है कि क्यों वो इतने स्वभाव में अच्छे और नम्र होते हैं, क्योंकि वह अपने अंदर के उस बुरे स्वभाव को लगातार वश में किए रहते हैं, अधीनता में रखते हैं। But in uncontrolled moments, their real nature will come out. लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां पर वो अपने इस बुरे स्वभाव को और ज्यादा नियंत्रण में नहीं रख सकते, वहां पर उनका ये बुरा स्वभाव फूट निकलता है। That is why if we don't work out our salvation now and bring out all these things to the subjection of Christ and get deliverance from all this nature, one day when we are sick and when we are old, sometimes all these natures may come out in our unguarded moments. और यदि अभी हमारे पास जबकि समय है और समय रहते हम यदि इन सारे स्वभावों को, जो हमारे अंदर बुरे बुरे स्वभाव है, यदि मसीह के अधीनता में नहीं लाते हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए मसीह से नहीं कहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उम्र होंगे या बीमार पड़ जाएंगे, तब ये बुरे स्वभाव हमारे अंदर से फूट निकलेंगे। What in the verse says, their mouth is full of cursing and bitterness. 14 वचन कहता है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। This can happen to us in uncontrolled moments if we have not got victory over these natures in our life.
और यह हमारे साथ भी हो सकता है कि जब हमारे जीवन पर इन सारे पापों पर हमें जय नहीं मिली और यह सारी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है। We'll read further. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways. और उसके आगे 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। We can be like people who go around and backbite, slander, gossip, and shed blood all around. और हम ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो लोगों के पीठ पीछे जाकर उनकी बुराई करते हैं, उनकी कमियों के बारे में चुगली करते हो और इस रीति से हम उनका लहू बहाते हो। We may not be shedding physical blood, but we can produce death into the life of people by all this. और हम बाहरी शारीरिक तौर पर हम किसी का लहू नहीं बहाते होंगे, लेकिन हम भीतर से एक व्यक्ति के ऊपर अ, अ, उसे उसे छलनी कर रहे हैं, उसका लहू बहाते हैं। 17th verse says that way of peace is not, they don't know the way of peace. और 17वां वचन, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। That is the nature of all of us. If it was not for Christ, we would not have been known the way of peace. We would have been the people who create problems and trouble and strife all around. और यही कारण है कि यदि मसीह नहीं होते तो हम हमारे आसपास के सारे लोगों के लिए हम समस्याओं को खड़ा कर देते। The 18th verse is the culmination of all that. This sums up all this into one sentence. There is no fear of God before their eyes. और 18वां वचन जो है ऊपर की इन सारे वचनों में लिखी हुई बातों का सारांश है, वह एक ही वाक्य में इन सारी बातों को कहता है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। We are seen in chapter 1 also. Though they see the greatness and majesty of God, they did not glorify God. And because of that, they fell into sin. और हमने रोमियो के अध्याय 1 में भी अध्ययन के दौरान पाया कि लोगों ने परमेश्वर की उस महिमा को नहीं जाना, परमेश्वर की उस शक्ति को नहीं जाना, और यही कारण है कि वो पाप में गिर गए। When we look at this, we can see that the gospel is so glorious, which can save us from all this. लेकिन जब हम सुसमाचार की ओर आते हैं, तब हम यह पाते हैं कि यह सुसमाचार हमें इन सारे पापों से हमें छुड़ा सकता है। The salvation is not something which will take us to heaven. The salvation is something which will make us like Christ. और उद्धार यह नहीं कि हमें स्वर्ग में पाप से छुटकर हम स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु उद्धार वास्तव में यह है कि यह सुसमाचार। Brother, can you repeat last part? Salvation is something which will make us like Christ, not something which will take us to heaven. बल्कि Not उद्धार just हमारा something which will take us to heaven. उद्धार हमारा यह नहीं कि हमें स्वर्ग में लेकर चले जाएंगे, परंतु उद्धार वास्तव हमारा यह है कि हम यीशु मसीह के समान उनके स्वभाव में बनेंगे। We should not take God for granted. We should fear Him, have a reverent fear of God in our lives, which is like, consider that He is a king and His orders, everything He speaks is an order of a king. और हम परमेश्वर और उसकी महिमा को हल्के में न जाने, परंतु सेंटमेंट में न लें, परंतु उसे गंभीरता से लें कि परमेश्वर जो कुछ कहते हैं वह राजाओं के राजा हैं, और वह जो कह रहे हैं वो एक आज्ञा है। Even though He is our Father, He is also the king, He is also the judge. भले ही परमेश्वर हमारे पिता है, लेकिन वह एक राजा है और वह एक न्यायी भी है। And God did not spare the angels who sinned, but He had mercy on the worms like us, and He came and died for us, and He saved us. कि परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों ने भी पाप किया तो उनको नहीं बख्शा, उन्हें नहीं छोड़ा, परंतु उनको भी दंडित किया। तो हम जो कीड़े के समान, जंतु के समान, हम जो मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई है। We should never forget this and consider God with that much of reverence and fear in our life. कि आप इस बात को गंभीरता से लें और अपने जीवन में परमेश्वर का इस रीति से भय माने और उसका आदर करें। We'll stop here and I will just read the next verse and we'll stop, and the next week we will start from verse 19. और अब मैं यहाँ पर समाप्त करता, मैं रुकना चाहता हूँ और आगे के वचन से हम अगली बार अध्ययन करेंगे। So we just read that 19th verse says that now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced, whole world held accountable to God. 19वां वचन हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। Then the verse is, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law we become conscious of our sins. अब 20वां वचन, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है।
So the law cannot save us. It cannot make us righteous. जो व्यवस्था है वो हमें बचा नहीं सकती और ना ही वो हमें उद्धार कर सकती है। So as we saw in chapter 2, that there is a righteousness which is apart from the law has come to save us. और रोमियो के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि ऐसी धार्मिकता जो व्यवस्था की धार्मिकता नहीं, उससे अलग धार्मिकता है, वो हमें बचा सकती है। The standard of that righteousness is so high, it is beyond our reach. और उस धार्मिकता का जो जीवन है वो हमारी पहुंच से काफी ऊपर है, उसका स्तर बहुत ऊंचा है जहां पर हम नहीं पहुंच सकते। It's impossible for us to attain that by our own effort. और हमारे खुद के प्रयत्न के द्वारा हम यह असंभव है कि हम उसको पा सकें। It is possible by faith in Jesus Christ and by His grace. यह केवल संभव है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा। That's why every mouth is shut. Nobody can say that, because I was born in a good family, or I read Bible, or nothing. We can have anything, nothing to boast. It's only by grace. इससे हर एक का मुंह बंद किया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहने पाएगा कि मैं अच्छे मसीह परिवार में जन्म लिया हूं या मैंने बाइबल पढ़ी है जिसके कारण मैंने यह पाया है। We'll take this in detail next session. और आगे के अध्ययन के दौरान हम इसे गहराई से जानेंगे। Yeah, so I just want to underline what we heard today. मैं उन बातों पर जोर देना चाहता हूं जो हमने आज सुना। We heard from Brother George that from verse 10 onwards, there is nobody righteous, nobody understands, and so on. तो हमने आज भाई जॉर्ज से सुना वचन तीसरे अध्याय के वचन 10 से लेकर कि कोई भी ऐसा धर्मी नहीं है और कोई भी अपने आप को सही नहीं ठहरा सकता। What Paul is trying to the point to which he is coming is, how can a man be justified, declared righteous? तो यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस जिस बात को जोर देना चाहते हैं वह यह है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहरा सकता है। We cannot declare ourselves righteous. God has to declare ourselves righteous. तो हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, परंतु परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा सकते हैं। We can stand before God as holy as Jesus Christ is holy. और हम परमेश्वर के समक्ष उसी प्रकार पवित्र ठहर सकते हैं जैसे यीशु मसीह खुद पवित्र हैं। That is a wonderful gospel. और यह एक बहुत ही अद्भुत सुसमाचार है। For that, I have to come to God as is written in verse 10 onwards. Lord, I am not righteous at all before you. और वैसा होने के लिए मुझे परमेश्वर के सामने उसी प्रकार से आना पड़ेगा जिस प्रकार से 10 में लिखा गया है कि परमेश्वर में से कोई भी धर्मी नहीं है, एक। Lord, I understand nothing. If you don't give me understanding, I have got no understanding. और परमेश्वर मुझे कोई भी समझ नहीं है, अगर आप मुझे समझ ना दें तो मैं कुछ भी समझ नहीं सकता। I don't seek after God. You have to give me that desire to seek after you. और मैं आपके पीछे होने का जो मेरे अंदर इच्छा नहीं है, वो इच्छा आपको मुझे देनी पड़ेगी कि मैं आपके पीछे रहूं। I'm totally useless for anything of spiritual value apart from the grace of God. और मैं किसी भी, मेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं है जिससे आत्मिक खूबी मेरे में मानी जाए, अगर आपका अनुग्रह मेरे पास नहीं है तो। See, I want to tell you, brothers and sisters, if any time we come to God thinking that, oh Lord, I understand something, I'm little holy, I'm little righteous, I want to tell you, God cannot declare us righteous. तो भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के सामने इस प्रकार से आएंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर, मैं पवित्र हूँ और ये मैं धर्मी हूँ, तो परमेश्वर हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते। I just want to tell one more thing. We see in verse 4. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो लिखी गई है वचन 4 में। This is written about God
it's written that it's a quotation from Psalm that thou might be justified in thy words and might prevail when thou art judged. तो यह बात परमेश्वर के विषय में लिखी गई है और वह वचन संहिता में से ली गई है कि वर्स 4 नो Yeah. कि परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा गया है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए. So we can also imagine we are defeated by sin, defeated maybe in anxiety or anger, but we can quote God's word, which is absolute truth. And when we confess God's word, what happens is by our words, God can justify us. We can confess it to Satan. We can even confess it to our brothers. And by our words, as is written here, we can be justified. तो हम हारे हो सकते हैं अपने पापों में, जैसे चिंता करने वाला या गुस्सा करने के हम अधीन हो सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर का वचन है वह पूरा वह सच्चा है, और अगर हम उसको अंगीकार करें और हम अपने पापों का भी अंगीकार परमेश्वर के सामने या अपने भाई बहनों के सामने करें तो हम धर्मी ठहर सकते हैं. God's word is absolute truth, and when I confess it, I can also be justified by those words. जो परमेश्वर का वचन है वह पूरी तरह से सच्चा है, और जब हम उसको स्वीकारते हैं, अंगीकार करते हैं, तब हम धर्मी ठहरते हैं परमेश्वर के सामने. There are two words that strike in this scriptures is Romans chapter 3 verse 9. The one sentence is what then are we better than they? And second word that strike me is not at all, for we have already said that both Jews and Greeks are all under sin. तो यहाँ पर दो वचन हैं जो रोमियो के 3 अध्याय में से मुझे छुए. उनमें से एक वचन है जहाँ पर लिखा है कि उसमें 9वां वचन में, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? और आगे लिखा हुआ है कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे हम सब पाप के वश में हैं. So one word is are we better than they? तो पहला शब्द है क्या हम उनसे अच्छे हैं. The second thing is are all under sin. और दूसरा शब्द है कि हम सभी पाप के वश में हैं. So I am righteous. I am saved not because of my good works, because of my any ability, but because of what Christ Jesus did on the cross. तो मैं आज धर्मी ठहरता हूँ और मैं आज बचाया गया हूँ मेरे खुद के कामों से या मेरी खुद की खूबी के वजह से नहीं, परंतु जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसके वजह से. The Gentiles, the other Hindus and Muslims are all under sin. I am not under sin, not because Christ saved me, because His mercy is upon me. He chose me for His good purpose. तो जो अन्य जातियों के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान और अन्य जाति के लोग, वे सब पाप के वश में हैं, परंतु मैं पाप के वश में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा बचाया गया हूँ. So I don't compare with others and be proud. और इसलिए मैं अपने आप को उनसे तुलना नहीं करता हूँ और मेरे अंदर घमंड नहीं है. Because I am not better than that Hindu person or that Muslim person. I am just as sinner as like them. क्योंकि मैं उस हिंदू जो इंसान है या जो वह दूसरे जाति का जो इंसान है उससे बेहतर नहीं हूँ, मैं उनके ही समान हूँ. So there is none righteous in that no one is righteous, that is including me also.
तो कोई भी धर्मी नहीं है, तो उन लोगों में मैं भी हूँ जो धर्मी नहीं हूँ. So, and the thing is, the second part is all under sin. That word that blessed my heart. तो जो दूसरा शब्द जो मेरे हृदय को छू गया वह है कि हम सभी पाप के वश में हैं. So it will make me not to be proud, और यह वचन मुझे घमंडी होने से रोकेगा, because I am under grace now, not because of my talents or any such things, but because of Jesus Christ. क्योंकि मैं अनुग्रह के वश में हूँ, और वह मेरे किसी काबिलियत या मेरे किसी काम के वजह से नहीं, परंतु जो मसीह ने मेरे लिए किया उसके वजह से. One word, the last word I want to say is one of the mark that are under sin is in verse 17, the path of peace they have not known. तो एक और चिन्ह है जिससे हम बता सकते हैं कि हम पाप के वश में नहीं हैं, जो लिखा है रोमियो के 3 अध्याय के 17वें वचन में, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना. ब्रदर 17 वर्स. Yes, yes, sir. So, if I am under grace, if I want to be like Jesus, I have to walk in the path of peace with God and peace with men. तो अगर मैं अनुग्रह के अंदर हूँ, तो मैं उस मार्ग पे चलूंगा जो उस मार्ग पे मसीह चलता है, और उस मार्ग में मेरी परमेश्वर के साथ शांति का संबंध होगा, और दूसरे लोगों के साथ भी मेरा शांति का संबंध होगा. In Romans chapter 12, in verse 18, it says, "If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men." रोमियो के 12वें अध्याय के 18वें वचन में ऐसा लिखा है कि जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो. So, if I want to be under grace, not under sin, I have to be at peace with all men and be at peace with God. तो अगर मैं अनुग्रह के अधीन रहना चाहता हूँ और पाप के अधीन नहीं रहना चाहता हूँ, तो मुझे सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए. Thank you. Okay, there is some phrase that caught my attention as I was reading, as Brother George was sharing. तो यहाँ पर एक वचन है जिसके ऊपर मेरा ध्यान गया जब भाई जॉर्ज बांट रहे थे. That's in verse 7. वह वचन 7 है. Actually, in 8, it's in bracket over here. तो वह रोमियो के 3 का 8वां वचन है जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है. As we are slanderously reported, and as some claim that we say. और यह लिखा है कि और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है. Let us do evil that good may come. Yeah. कि यहाँ पर लिखा है कि हम बुराई करें ताकि भलाई आ जाए. Yeah, that's what Jewish people were telling. Paul is preaching, let us do evil, so God's grace would come. तो जो यहूदी लोग थे वे ऐसा करते थे कि हम बुरा काम Paul करें. is preaching that you do evil and you'll get God's grace, good will come. तो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि आप बुरा काम करो और फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा. That is what they were slanderously reported. That is what Paul is saying. This is what people are talking about us. अच्छा, तो तो यहाँ पर पौलुस बोलते हैं कि यही विश्वासियों के विषय में बाहर बोला जाता है और उनकी बुराई की जाती है. You need to understand, because in that day and age, in that culture, the law was a great thing. If you don't obey the law, you would be punished. You would be judged. तो हमें इस बात को समझना है कि उन दिनों में जो व्यवस्था थी वह बहुत एक बड़ी बात थी, और अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर दंड होता था. So here one day Paul gets a revelation about the Lord, about Jesus and his death and resurrection, and he starts preaching. You don't need to obey the commandments. No need to circumcise. You don't have to
follow the rules and laws, 613 laws that are there to be right with God. So obviously people would think that now we can continue to misquote Paul and continue to live the way we like want to live. We need not keep the commandments. But that was not Paul's intention of his preaching. तो एक दिन ऐसे ही प्रेरित पौलुस को यह जो प्रकाशन मिला कि हमें उन सभी व्यवस्था के सारे नियमों जो 600 से भी ज्यादा है उनका पालन करने का हम उस पालन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम व्यवस्था के अंदर में नहीं है। तभी बहुत सारे लोगों ने उसको गलत तरीके से बताते हुए Paul को दोष लगाया. बताते हुए पौलुस को दोष लगाया Because Paul had got the revelation of Jesus, how he died and the Son of God died, and because of the virtue of what he had done, now we just believe and have faith in him. That is the gospel. And that's how we believe and confess and repent and walk with Jesus in the Holy Spirit. We are right with God. क्योंकि प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह का प्रकाशन था कि कैसे उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी और व्यवस्था अभी हम व्यवस्था के अंदर में नहीं है और यह बात पौलुस को समझ में आई थी। Apostle Paul shows the Jews and the Gentiles, about the Jews and the Gentiles. हम यहाँ तीसरे अध्याय में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो यहूदियों और यूनानियों के बारे में बताते हैं। So Gentiles were without God, and but he was saying that, but when they live lives which are according to what's written in their conscience, they are better than the Jews. और प्रेरित पौलुस यहाँ समझाते हैं कि जो अन्य जाति है जिसके पास व्यवस्था नहीं था, वो जब अपने विवेक के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो वो जिनके पास व्यवस्था है, जो यहूदी है, उनसे अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। Yeah, they are better than the Jews who do not keep the law. वो ऐसे यहूदियों से बढ़कर या उनसे अच्छे हैं जो व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। Then he speaks about the Jews, that they were special people. The commandments of God was given to them. और वो समझाते हैं कि जो यहूदी थे वो चुने हुए लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अपना व्यवस्था दिया। But he comes to the point that both Gentiles and Jews are under sin. और उसके बाद वो समझाते हैं कि इसके बावजूद जो है यहूदी और अन्य जाति सब पाप के अधीन हैं। And there is no one who is righteous. That he wanted to prove that point completely. That is, Jews who are special, who had got a lot of special privileges, they were also under sin. Gentiles who did not have God were also under sin. तो वो ऐसा समझाना चाहते थे कि यहूदी जिनके पास व्यवस्था थी वो भी धार्मिक नहीं थे और जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, जो अन्य जाति थे, वो भी धार्मिक नहीं थे। So he brought them to one level. तो उनको एक ही स्तर में आकर लेकर खड़ा किया उन्होंने। And then he says, what is the those who do not seek God, what are the different qualities in them? और फिर उन्होंने ये समझाया कि जो परमेश्वर को खोजते नहीं उनके क्या लक्षण होते हैं। It's a very deep list. When we think about all that, we know that not a single man is pure and good before God. और हम इसके बारे में गहरे रूप से अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के सामने बिना पाप का ठहर सकता है। And to such people who did not seek God and who did not who were not pure inside, to them God has made a wonderful plan. और ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर को खोजते नहीं थे और
उनके जीवन में वो पाप से घिरे हुए थे, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई। So God has not left the Jews helpless, and God has not left the Gentiles helpless, but He has made a plan, and that is what we're going to see in the next study. और अगले जो अध्ययन है उसमें हम देखते हैं कि जो बिना व्यवस्था के हैं उनके लिए और जो व्यवस्था के साथ है लेकिन वो उसे रख नहीं पाए, दोनों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है जिसके बारे में हम अगले बार अध्ययन करेंगे। So, brothers and sisters, the next section of this chapter 3 speaks about a great truth called justification by faith. Chapter 3 and chapter 4, which will revolutionize our life. और ये एक ऐसा सच है जो हम आगे जो तीसरा अध्याय के जो अध्ययन करेंगे और चौथा अध्याय में जो लिखा है उसका जब हम अध्ययन करेंगे हम देखेंगे कि ये एक ऐसा सच है जो हमारे जीवन को एकदम बदल देगा। May God help us and bless us so we can respond to this, whatever we have heard. Maybe two or three of us can pray.